Hello students, so we start with a new chapter that is known as ecology or environmental biology. So ecology is the interaction of living organisms with environment. Ecology is the interaction of living organisms with environment. So living organisms that actually belong to different categories. So it is a branch of biology, the study of interrelationship. It is the study of interrelationship. So ecology is the branch of biology which deals with the study of interrelationship amongst organisms and interactions between organisms and their environment, and interactions of organisms with their environment. सो ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में क्या इंटरेक्शंस होती है, क्या इंटर रिलेशनशिप क्या है, और ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, दैट स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी. तो यहां पर जो हमने लिखा है इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, तो कौन सा एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है. सो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स. सो ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट with all the components organisms interact with all the components of environments. That is all kinds of environment के साथ वो इंटरेक्शन करता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere. So different types of environment के साथ और different components of environment के साथ इंटरेक्शन करता है, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करता है. ठीक है. और जो इकोलॉजी का जो टर्म है वो फर्स्ट एर्नस्ट हैकेल ने दिए थे एंड ऑथेंटिक यूज किए थे रेटर. सो इकोलॉजी का टर्म जो है, दिस वर्ड इकोलॉजी वाज फर्स्ट गिवन बाय एर्नस्ट हैकेल एंड फर्स्ट ऑथेंटिक यूज बाय रेटर. Ecology also called as the alternate name of ecology, or ecology also called as hexicology.
The alternate name of the ecology is hexicology. Ecology has two main branches. One is the autoecology, another is the synecology. Autoecology and synecology. So autoecology is known as species ecology, and synecology is known as community ecology. अगर एक स्पेसीज इंडिविजुअल स्पेसीज अगर इंटरेक्शन करेगा एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज नोन एज ऑटोइकोलॉजी. अगर स्पेसीज मिलके क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, वेरियस पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी होती है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज मिलके जो कम्युनिटी बनाते हैं, अगर कम्युनिटी इंटरेक्शन करेगा एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज नोन एज सिनेकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी. जो टू ब्रांचेस है इसका इकोलॉजी का, टू मेन ब्रांचेस, ऑटोइकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी. सो ऑटोइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन development of population or species, study of relationships between population or species with environment. Species या population and environment. Study of relationships between species or population and environment. And study of relationship between communities and environment is called synecology. और community में क्या आएगा? Composition, organization and development of communities. इसका कम्युनिटी का कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी, कंपोजिशन मतलब उसका क्या क्या सब कंपोनेंट है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट. कम्युनिटी का कंपोजिशन, कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी का डेवलपमेंट. ये सब कम्युनिटी में आएगा, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में आएगा. सो कम्युनिटी का रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट, दैट मीन्स कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी विथ एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज सिनेकोलॉजी. Okay.
Next, we'll go to the labels of ecological organizations. Labels of ecological organization. So, all of you know about the biological organization, that is also known as the biological hierarchy. The hierarchy in organization from level of biomolecules to organisms, from molecule, cell, tissue, organ, then organism, body, whole body. So, from biomolecules to organism, there is a stepwise organization, that is called as the successive sequential organization, called as biological hierarchy. So, hierarchy in organization, from the level of biomolecules. Hierarchy in the organization from the level of biomolecules, from the level of biomolecules to organismic level is called biological hierarchy. Is called biological organization or known as biological hierarchy. So, at every level of biological organization, two questions arises: how and why. NCERT पॉइंट है, NCERT रिलेटेड पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल में, चाहे आप सेल लेवल में जाइए, टिश्यू, ऑर्गन लेवल में, हर लेवल में देयर इज two question arises at every level of biological organization. At every level of biological organization, two question arises, that is how and why. Two question arises, that is how and why. इसका मतलब क्या है? क्यों एंड कैसा. हाउ मतलब कैसे होता है, वाई मतलब क्यों होता है. सो इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, कुछ नोट्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा. फर्स्ट पेज में लिखा है हाउ एंड वाई. Suppose a bird sings, then you should ask the question, how does the bird sing and why does the bird sing?
तो हाउ डज ए बर्ड सिंग, एक बर्ड कैसे सिंग करता है? तो कैसे करता है मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका लैरिंग्स का कंपोजिशन क्या है, उसका अरेंजमेंट क्या है, उसका सो हाउ का पीछे उसका मैकेनिज्म आता है। कैसे एक बर्ड सिंग करता है मतलब मैकेनिज्म क्या है, सिंग करने के पीछे मैकेनिज्म क्या है। एंड व्हाई ए बर्ड सिंग, क्यों वो सिंग करता है, इसके पीछे क्वेश्चन है, इसका मतलब है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। तो हम यहां पर दो बात स्टडी करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। हर लेवल में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैकेनिज्म है, कोई भी प्रोसेस होने का मैकेनिज्म क्या है और उस प्रोसेस का क्या रिजल्ट है, या उसका इंपोर्टेंस क्या है, या सिग्निफिकेंस क्या है। तो सपोज इस केस में जो बर्ड सिंग करता है, इस केस में उसका जो मैकेनिज्म है, उसका वॉइस बॉक्स का जो कंपोजिशन है, लैरिंग्स है, उसको एक्सप्लेन करता है। और जो सिग्निफिकेंस है, जो वाई वाला जो क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई, जो सिग्निफिकेंस है या इंपोर्टेंस है, शायद बर्ड्स कम्युनिकेट करता है दूसरे बर्ड को, उसका मेट को इन द ब्रीडिंग सीजन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाउ एंड वाई। Okay, the hierarchy in the levels of organization in the levels of organization, hierarchy in the levels of organization connected with ecological grouping, of organisms, ecological grouping of organisms. The hierarchy in the levels of organization connected with ecological grouping of organisms is called ecological levels of organization. Called ecological levels of organization, also called as ecological hierarchy. Also called as
इकोलॉजिकल हायरार्की। तो इसका मतलब क्या है, तो बायोलॉजिकल जो हायरार्की है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक पार्ट है, एक लेवल है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इकोलॉजिकल हायरार्की। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कनेक्ट होता है इकोलॉजिकली, अगर हम ग्रुपिंग करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, सपोज मान लो कि ह्यूमन, तो ह्यूमन एज ए बॉडी, एक बॉडी के हिसाब से वो एक इंडिविजुअल है, तो एक ह्यूमन का बॉडी भी इंटरेक्शन करता है एनवायरमेंट के साथ। और पॉपुलेशन, तो ह्यूमन एक जगह में ह्यूमन है, एक जियोग्राफिकल एरिया में ह्यूमन है, सपोज उड़ीसा का पॉपुलेशन, लाइक बरहमपुर का पॉपुलेशन, भुवनेश्वर का पॉपुलेशन, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो स्पेसीज रहते हैं, उसका ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। तो स्पेसीज लेवल में भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हो सकता है, पॉपुलेशन लेवल में भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हो सकता है, और वेरियस पॉपुलेशन मिलकर जब कम्युनिटी बनता है तो कम्युनिटी लेवल में भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हो सकता है। तो इकोलॉजिकल ग्रुपिंग अगर हम करेंगे ऑर्गेनिजम्स को और उसको लेवल में कनेक्ट करेंगे, तो दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल हायरार्की। ओके, अगर हम फंक्शनल सेंस अमंग्स वेरियस लेवल समझेंगे, इन द फंक्शनल सेंस अमंग्स वेरियस लेवल्स, कैसे फंक्शन करता है वेरियस लेवल में, in the functional sense at various levels। तो वेरियस लेवल जैसे कि हमने अभी आपको बोला कि स्पेसीज, इंडिविजुअल, स्पेसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, जो डिफरेंट लेवल है इकोलॉजी का, उसका जो फंक्शनल सेंस होता है उसमें कोई शार्प लाइंस नहीं होता है, शार्प डिमार्केशन नहीं होता है, देयर आर नो शार्प लाइंस, और ब्रेक नहीं होता है फंक्शनल सेंस में। फंक्शनल सेंस अमॉन्ग्स्ट वेरियस लेवल और एट वेरियस लेवल, वेरियस लेवल के बीच में जो फंक्शन होता है उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, बस शार्प लाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज same individual is a component of population, community and ecosystem, because same individual is a component of population, community and as well as ecosystem. Because same individual is component of population, community and ecosystem. इसलिए जो वेरियस लेवल, इकोलॉजी का जो वेरियस लेवल काम करता है ना, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, वो सब लिंक है, आपस में लिंक है। देयर इज नो शार्प लाइंस और शार्प डिमार्केशन और शार्प ब्रेकिंग इन द फंक्शनल सेंस, बिकॉज एक इंडिविजुअल, सपोज आप ह्यूमन ले लो या टाइगर, डॉग, काउ ले लो, वो पॉपुलेशन का भी हिस्सा है, कम्युनिटी का भी हिस्सा है एंड इकोसिस्टम का भी हिस्सा है, तो फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं, देयर इज नो शार्प ब्रेक्स। सो अगर हम इकोलॉजी का वेरियस हायरार्की देखेंगे व लेवल्स देखेंगे,
So ecological hierarchy or levels of ecological organization. So individual organism is known as species. जो बहुत सारे स्पेसीज सेम काइंड ऑफ स्पेसीज कनेक्टेड होते हैं उस ग्रुपिंग को बोलते हैं पॉपुलेशन. और वेरियस पॉपुलेशन जब ग्रुप होते हैं एट वन प्लेस रिजाइड करते हैं दैट इज नोन एज कम्युनिटी और नोन एज इकोलॉजिकल कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी. बायोलॉजिकल कम्युनिटी या इसको भी हम बोल सकते हैं बायोटिक कम्युनिटी. उसके बाद आएगा आफ्टर बायोटिक कम्युनिटी नेक्स्ट कम्स इकोसिस्टम. और बहुत सारा इकोसिस्टम मिलके बनता है लैंडस्केप और लैंडस्केप मिलके बनता है बायोम. And different biomes of the earth together constitute biosphere. So these are the different levels in the ecological level of organization or ecological hierarchy. So now we'll individually deal with this. Individual organism বা species क्या है, population क्या है. So we'll start with ऑर्गेनिज्म. और एक ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी इंटरेक्शन कर सकता है. ऑर्गेनिज्म मतलब स्पेसीज भी बोल सकते हैं या इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं. ये सबसे बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की में. सबसे बेसिक यूनिट है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. Individual organism is the basic unit. Individual organism is the basic unit of ecological hierarchy. So इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो स्पेसीज इंडिविजुअल स्पेसीज होता है दैट इज इंडिविजुअल स्पेसीज है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की. तो इसका मतलब है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटररिलेशनशिप करेगा और उसका बॉडी कैसे अडेप्ट होगा टू ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट. तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो इकोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. क्योंकि बॉडी का हमारा जो फंक्शंस है प्रोसेसेस है उसके कारण हम एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं. सो ये फिजियोलॉजी लेवल में अडेप्टेशन हो रहा है. सो फिजियोलॉजी लेवल में ये इकोलॉजी प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है. तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी. is also called as physiological ecology. Organismic ecology is also called as physiological ecology. So population लेवल का जो इकोलॉजी है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी. सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी आर देयर.
तो पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज ए पॉपुलेशन? सो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज, individuals of the same species combine and reside at a particular place is known as population. So grouping of similar individuals in a particular geographical area. It is the grouping of similar individuals or similar species. It is the grouping of similar individuals or similar species in a particular geographical area. In a particular geographical area. Different populations of the same organism different populations of same organism different populations of same organism present in particular geographical areas are called local populations or DEMS. Different populations of same organism present in particular geographical areas called as local populations, and local populations also called as DEMS. Local populations also called as DEMS. तो जो लोकल पॉपुलेशन होता है उसको बोलते हैं डेम्स. सो एक लोकल पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिकली अडेप्ट करता है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को जेनेटिकली अडेप्ट करता है. सपोज मान लो कि ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात बोलेंगे, इंडिया का पॉपुलेशन, तो इंडिया में जितने ह्यूमन है जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, सदर्न पेनिनसुला में, और इंडियन सब ट्रॉपिक जोन में रहते हैं, वो एक that from a population. लेकिन सपोज इंडिया में जो आदमी रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन. लेकिन इंडिया का कुछ लोग जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जैसे मान लो कि हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो वो इस पॉपुलेशन का एक हिस्सा है. सो दैट फॉर्म है लोकल पॉपुलेशन. जो साउदर्न एरिया में रहते हैं वो एक लोकल पॉपुलेशन है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो लोग रहते हैं वो एक लोकल पॉपुलेशन है. तो ये जो सब लोकल पॉपुलेशन है, एक बड़ा पॉपुलेशन का जो सब लोकल पॉपुलेशन होता है उसको बोलते हैं डेम्स. तो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उनका अडेप्टेशन अलग होता है हमसे थोड़ा, क्योंकि हम प्लेन में रहते हैं, प्लेन एरिया में हम रहते हैं. तो उनका पहाड़ी एरिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां पर उनके अडेप्टेशन हुआ है. जैसे कि पहाड़ी एरिया में ऑक्सीजन कम होता है तो उनका आरबीसी कंटेंट ज्यादा होती है. सो ये बड़ा सा जो पॉपुलेशन है इंडियन पॉपुलेशन, उसी का इंडियन पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का, वो जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं इकोटाइप. सो जो डेम्स है लोकल पॉपुलेशन, उनको इकोटाइप बोलते हैं.
So a local population adapted genetically. A local population adapted genetically. A local population adapted genetically to its particular environment, to its particular environment. A local population adapted genetically to its particular environment is called ecotype. Is called ecotype. So after population, then we will go to the community, biological community or known as biotic community, or simply can be called as community. We can call it as biotic community or only community. Community or biotic community. It is an assemblage of different kinds of populations live in a particular area and interact with one another. So सपोज मान लो कि एक फॉरेस्ट में डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई सब रहते हैं, वो उस फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं, तो पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फंगाई भी इन्फेक्शन करता है प्लांट को एनिमल खाता है, एक एनिमल को दूसरा एनिमल भी खाता है। ये सब इंटरेक्शन से विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होती है। तो क्योंकि एक कम्युनिटी बहुत सारे पॉपुलेशन को लेके ही एक कम्युनिटी बनता है, तो उस कम्युनिटी में जो डिफरेंट पॉपुलेशन होता है, एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। सो दैट्स व्हाई कम्युनिटी इज द assemblage of different populations which live in a particular area, which live in a particular area. Which live in a particular area and interact with one another. And interact with one another. Like competition, predation, mutualism, etc. So interact with one another. ये सब इंटरेक्शन क्या है? ये कंपटीशन हो सकता है, प्रेडेशन हो सकता है, कंपटीशन, प्रेडेशन, then is the mutualism or symbiosis, etc. सो कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन रहते हैं
उस पॉपुलेशंस के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस डू टेक प्लेस एंड दोज इंटरेक्शंस इंक्लूड कंपटीशन, predation, mutualism, etc. Each biotic community has a specific composition and structure. Each biotic community has a specific composition and structure. Okay. So, in the ecological chapter, we are studying the first chapter, that is organisms and population. Organisms and populations. Okay. Each biotic community has a specific composition and structure. So example क्या है, जैसे कि कम्युनिटी में पॉन्ड कम्युनिटी आता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी आती है. सो पॉन्ड एक एरिया है जिसमें कि डिफरेंट पॉपुलेशंस रहता है, उन पॉपुलेशन को मिला के पॉन्ड कम्युनिटी बोलेंगे. सो पॉन्ड में जो पॉन्ड कम्युनिटी होता है उसका कंपोजिशन या उसका कंपोनेंट अलग अलग है. उसमें फिशेस होते हैं, वाटर इंसेक्ट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी अलग है. फॉरेस्ट का उसमें एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी अलग है. सो एग्जांपल पॉन्ड कम्युनिटी. Example is pond community. Next is the ecosystem. Ecosystem is the segment of nature. नेचर का एक हिस्सा है जो वेरियस कम्युनिटी एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. सपोज मान लो कि फॉरेस्ट में जितना लिविंग कंपोनेंट है दैट फॉर्म द कम्युनिटी. प्लांट्स है, वेरियस प्लांट्स है, एनिमल्स है, दैट फॉर्म कम्युनिटी. अगर उसी कम्युनिटी के साथ हम नॉन लिविंग बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि सॉइल, एटमॉस्फेयर, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, अगर इंक्लूड कर देंगे दैट बिकम्स इकोसिस्टम. इट इज अ सेगमेंट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट. It is a segment of nature consisting of a biological community consisting of a biological community consisting of a biological community and its physical environment or non-living environment. सो फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है वो नॉन लिविंग होता है, या इसको हम बोलते हैं अबायोटिक एनवायरनमेंट. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि लाइट, रेनफॉल, सॉइल एक्सेट्रा. सो इसमें क्या होता है,
ecosystem में there is the continuous exchange of materials as well as energy. So continuous exchange होता है while the community and abiotic environment के बीच में continuous exchange of material भी होती है, energy होती है. So continuous exchange of material and energy between biological community, that is biotic or living, and abiotic environment. Abiotic मतलब non living environment. So next we will go to the landscape. It is a unit of land. So it is an unit of land distinguished. It is an unit of land distinguished by a natural boundary. Natural boundary distinguished by a natural boundary and having patches of different ecosystems and having patches of different ecosystems. Patches of different ecosystems. Example है Southern Peninsula. Example है Southern Peninsula.
इसका मतलब क्या है? तो एक यूनिट ऑफ लैंड है, दिस इज अ यूनिट ऑफ लैंड, लैंड का एक पार्ट है जो कि नेचुरल बाउंड्री के द्वारा वो चारों तरफ से क्लोज है। क्लोज तो नहीं है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया को हम डिस्टिंग्विश करते हैं नेचुरल बाउंड्री से, और उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स है। सो डिफरेंट इकोसिस्टम लेके एक बायोम बनता है। जैसे कि साउदर्न पेनिनसुला एक बड़ा सा लैंड है जिसमें फॉरेस्ट भी है, पॉन्ड भी है, एक पार्ट ऑफ सी भी है, डिफरेंट माउंटेन्स है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन लैंडस्केप। नेक्स्ट इज द बायोम। बहुत सारे लैंडस्केप जब मिल जाएंगे दैट विल बिकम बायोम, ए लार्ज रीजनल यूनिट। इसको हम बोल सकते हैं ए लार्ज रीजनल यूनिट, a large regional unit delimited by a large regional unit delimited by a specific climatic zone, delimited by a specific climatic zone, specific climatic zone delimited by a specific climatic zone having a particular major vegetation zone, having a particular major vegetation zone, particular major vegetation zone and its associated organisms. Vegetation zone and associated fauna मतलब एनिमल्स। तो बायोम एक लार्ज यूनिट है जिसमें कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन होता है, पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है उसमें, एंड उसमें उसका अपना मेजर प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन जोन होते हैं, एंड मेजर फाउना भी होती है एंड एसोसिएटेड फाउना। तो डिफरेंट डिफरेंट बायोम का अलग अलग प्लांट्स एंड अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग वेजिटेशन है, अलग अलग फाउना है। जैसे एग्जांपल है टुंड्रा, डेजर्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशन, ये सब बायोम है। टुंड्रा, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशन, so these are the different types of biomes found on earth. And what is biosphere? So what is biosphere? The total living content of the earth is known as biosphere. जितने भी अर्थ में टोटल लिविंग कंटेंट है, all are collectively called as biosphere. So सारे बायोम को अगर हम एक्यूमुलेट कर लेंगे और मिला देंगे तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर। इट इज बायोलॉजिकली इनहिबिटेड पार्ट ऑफ अर्थ। इट इज बायोलॉजिकली इनहाबिटेड
part of earth. It is biologically inhabited part of earth along with its physical environment. Along with its physical environment. So, जितने भी एरिया है अर्थ का जहां पर इनहैबिट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, सो बायोलॉजिकली इनहैबिटेड पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का जिस पार्ट में बायोलॉजिकली इनहैबिट होता है, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म और वो पार्ट और उसका जो इन्वायरमेंट है उस एरिया का, सबको टोटल अर्थ का मिला के हम उसको बायोस्फीयर बोलते हैं।